ऑलराइट गाइज, आपके क्वेश्चन नंबर 64 तक पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोडेड है, एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 तक डिस्कस हो चुका है। नाउ 65 से 120 अभी हम करने वाले हैं। दिस इज इन पार्ट 2 ऑफ द CDS 2 2022 एनालिसिस। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 65। 64 का मैंने बता दिया था, RPSQ वॉज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 65 का आपका आंसर होना चाहिए B. The correct answer should be SQPR for this one. Recording is on. Okay. ठीक है। SQPR is the correct answer for this question. Now कैसे? He resisted colonial education not just because it came from the West. उसके बाद आना चाहिए S. He also felt that English made one a stranger in one's own land. S के बाद आना चाहिए Q. For example, it was difficult for him to accept English as the medium of instruction because he felt that it has created a permanent bar between the highly educated few and the uneducated many. उसके बाद आना चाहिए P. Essentially, he disliked its English की बात करें, inherent elitism, its irrelevance as far as the needs of India's rural masses were concerned. Okay? और लास्ट में आपका आना चाहिए R. Okay, moreover, with his profound pedagogic sensitivity, he could see the damaging effect of colonial education. So B, SQPR, जिसने भी सोचा था बिल्कुल सही थे for this question. Besides, with this kind of education, could not appreciate the dignity of manual labor. So SQPR should be the one for this one. आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर होना चाहिए C, PQRS. A corpus is an abundant source of samples of English language. If this is to be the meaning that has been previously explained, they cannot just be picked out of the corpus at random. उसके बाद जो सेम सीक्वेंस है वैसे ही होना चाहिए. If they are to function as examples, however, then we need to ask just what is they are intended to be examples of. उसके बाद R, samples of the language isolated from their natural context of use will not normally exemplify word meanings but will simply show one instance of the world's actual occurrence. And last में S, this is because the context will usually make it unnecessary to spell the meaning out. Last में it is not only the previously explained meaning of that word. यहाँ पे meaning की बात कर रहे हैं. That word we might want a sample to exemplify, however, but also its co-locational tendencies. So PQRS सेम ऑर्डर में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 66। 67 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर होना चाहिए C, SQRP. Historians have often explained religious and social reform in India in the 19th century as a result of Western impact upon the minds of men. उसके बाद S, others have. Historians की बात करें, उसके बाद others की बात करें. Others have recognized that this was entirely too simple an explanation for the intellectual and social changes that took place in India and other places that fell under the foreign colonial rule. उसके बाद Q, the equation of westernization modernization has given way to a search for the indigenous sources of social changes, SQ. Then R, recognizing the modernity of tradition is one thing, however, whereas understanding the intellectual process that produced indigenously generated change is another. SQR. Last with P, with that purpose, we seek to analyze the thoughts and activities of individuals who are both religious reformers and vernacular publicists. Each of these vernacular using reformers derived his arguments from within his own tradition. Now यहाँ पे मैंने आपको ये कंपलसरी पेयर पकड़ा था, vernacular using reformers S6 में, और यहाँ पे भी vernacular publicists की बात कर रहा है, तो P should be the last one. P के बाद S6. कितने ऑप्शन में P लास्ट में आ रहा है? A और C में. दोनों कंपेयर करोगे तो C ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है सीक्वेंस में, तो SQRP इज द वन. क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें, 68 का आंसर होना चाहिए A, SQRP शुड बी राइट. द कंट्री हैज़ एक्सपीरियंस्ड अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिंस द अडॉप्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन द ईयर 1999. उसके बाद S, faced with a critical foreign exchange crisis, the country adopted the policy in the union budget presented in the year 1999. उसके बाद Q, in the immediate aftermath, budget present किया गया, उसके तुरंत बाद immediate aftermath of the newly announced policy, there was apprehension in the minds of people. लोगों को एक hesitancy थी माइंड में कि क्या होगा क्या नहीं होगा.
उसके बाद आर, विद इन अ फ्यू ईयर्स हाउएवर द बेनिफिशियल इम्पैक्ट, ये हेजिटेंसी तो थी, एप्रीहेंशन तो था, लेकिन कुछ साल बाद, हाउएवर, यहाँ पे हाउएवर लिखा है इसलिए क्यू के बाद आर आना जरूरी है। क्यू में एप्रीहेंशन था, लेकिन कुछ ही सालों में द बेनिफिशियल इम्पैक्ट ऑफ द न्यूली अनाउंस्ड पॉलिसी बिकेम मैनिफेस्ट थ्रू हायर जीडीपी एंड अ थ्राइविंग इकोनॉमी। तो एसक्यूआर। लास्ट में पी, द मिडिल क्लास have been the greatest beneficiary of the policy, who today enjoy far greater levels of income than their previous generations. Last May, the country dreams of a much larger economy today. Much of the optimism is due to the policy changes that took place in the year 1999. So SQRP, जिसने भी सोचा था, were absolutely right. Question number 69 की बात करें, the correct answer should be B for this one, RPQS. The Indian cooperative movement is probably one of the largest, strongest and the oldest in the world, with widespread spatial coverage, diversified business activities and ample success stories. उसके बाद आना चाहिए R, it is termed as the economic miracle of the last century. उसके बाद P, it has celebrated its centenary very recently. RP. उसके बाद Q, it is structured around the Rochdale principles and Raffison model in the wake of miseries of peasantry. Last में S, ever since the officially sponsored Act of 1904, the movement has passed through a number of phases. Last में S6, cooperatives have been organized in areas like credit, marketing, distribution, dairy development industry, sugar and so on. So RPQS should be the one for question number 69. 70 पे चलते हैं. Answer to question number 70 should be B, which is PSRQ. Degenerative and man-made diseases, or rather non-communicable diseases, mark epidemiological transition in the contemporary world. उसके बाद P, scholars reiterate that epidemiological transition, structural change in the disease pattern are inevitable. क्योंकि scholars की बात करें, यहाँ पे मैं बोलूँगा Omran's epidemiological transition, उसको और इलेबोरेट कर रहा हूँ. थियरी 1971 पोर्ट्रेड अ क्लियर पिक्चर ऑफ द चेंजिंग पैटर्न ऑफ डिजीजेस प्रेवलेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड. आर, क्योंकि उमरान है, इसके बाद ही की बात करेंगे. उमरान इज अ नेम, सो एस एंड आर इज अ कंपल्सरी पेयर. He argued that the disease pattern is shifting from the predominance of infectious and parasitic diseases to chronic and man-made diseases. Okay, so PSR. Last में Q. This transition is the result of rapid increments in urbanization and industrialization. Last में लिखोगे, this transition has led to rise of living standards in general, whereby people involve sedentary lifestyle with good socio-economic profile. Okay, so that should be the answer to this question. बढ़ते हैं आगे. ये क्वेश्चन था, आपको वर्ड के मीनिंग्स आपको बताना था, कौन सा ऐसा सेंटेंस है विच शुड बी करेक्ट. ये काफ़ी डाइसी था. आई एम श्योर कई लोगों को ये वाले क्वेश्चंस काफ़ी कंफ्यूजिंग लगे होंगे. चारों के चारों सेंटेंस ठीक लगे होंगे, बट डू नॉट वरी, आई गिव यू द करेक्ट आंसर्स. एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा कितने आप सही कर पाए. तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर होना चाहिए ए, एलिबाई का ये होना चाहिए. द अक्यूज वॉज एक्विटेड बिकॉज ही प्रोवाइडेड एन एलिबाई. एलिबाई बेसिकली होता क्या है? कहीं पे भी अगर आप क्या किसी कोई आपसे दोष लगा रहा है कि आपने ये, जैसे कोर्ट्स में होता है, अक्यूज को बोला जा रहा है कि तुमने ये मर्डर कमिट किया, तो अक्यूज कह रहा है कि नहीं, मैं तो उस समय वहाँ था ही नहीं, मैं किसी और जगह था, और उसके लिए वो प्रूफ बताता है. तो दैट इज़ एन एलिबाई. अगर कोई कहता है कि जब कोई क्राइम हुआ उस समय मैं वहाँ पे उपस्थित नहीं था, मैं कहीं और था, तो दैट इज़ एन एलिबाई. So the accused was acquitted because he provided an alibi. उसने एक ऐसा सिचुएशन बताया कि उसने ऐसा प्रूव कर दिया कि मैं उस समय वहाँ पे था ही नहीं. ओके, नेक्स्ट कंटिन्यूसली से सेंटेंस बनाना है. सो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए डी. द वाटर वॉज फ्लोइंग फ्रॉम द लीकिंग टैप कंटिन्यूसली. द कंटिन्यूसली का मतलब होता है लगातार, विदाउट स्टॉपिंग. तो बाकियों में क्या है देखो, द वेव्स लैप्ड अपॉन द शोर्स कंटिन्यूसली. नाउ वेव्स जो आएंगे शोर्स पे, आपने समुद्र तो देखा ही होगा, तो वेव्स जो है कंटिन्यूसली नहीं आता, उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअली. कंटिन्यूअली का मतलब ऐसी चीज जो लगातार बार बार रिपीट होता हो. अब वेव्स, मैं समुद्रों की लहरों की बात करूं तो आता है फिर जाता है, फिर आता है फिर जाता है, यह निरंतर चलता रहता है. सो दैट इज कंटिन्यूअली.
कोई चीज जो रिपीट होता हो वो कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, वो कंटिन्यूअल होता है, इस चीज को याद रखना। सो द वेव्स लैप्ड ऑन द शोर्स कंटिन्यूअसली नहीं लिख सकते। फेलोज एट द एकेडमी फॉलो देयर एक्सरसाइज रूटीन कंटिन्यूअसली। अगेन कंटिन्यूअसली कैसे फॉलो करेंगे, ये भी रिपीट होता होगा, आज एक्सरसाइज किया, फिर कल किया, फिर परसों किया, दिस इज अ रेपिटेटिव एक्शन, तो कंटिन्यूअली होगा। सिमिलरली द जाइंट पिस्टन एट द ऑयल रिग हैमर्ड द ग्राउंड कंटिन्यूअसली, मारा फिर गया, फिर मारा फिर गया, फिर मारा, तो इट इज अगेन अ रेपिटेटिव एक्शन, तो कंटिन्यूअली नॉट कंटिन्यूअसली। सो डी इज द करेक्ट आंसर। आई डोंट नो कितने लोगों ने इसका सही आंसर दिया। नेक्स्ट एलिसिट। एलिसिट क्वेश्चन नंबर 73। एलिसिट का मतलब किसी से कोई चीज निकलवाना। सो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर होना चाहिए सी। द डिमांड फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन डिड नॉट एलिसिट एन एंथुजियास्टिक रेस्पॉन्स। ओके, एलिसिट इज अ वर्ब, ठीक है, यहां पे एडजेक्टिव के तरह यूज किया गया है, सो रॉन्ग। द एलिसिट टाइज, अगेन एडजेक्टिव के तरह यूज किया गया है, तो रॉन्ग। द एलिसिट रीजंस, अगेन एडजेक्टिव के तरह यूज किया गया है, तो रॉन्ग। इसी में वर्ब के तरह यूज किया गया। द डिमांड फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन डिड नॉट एलिसिट एन एंथुजियास्टिक रेस्पॉन्स, सो सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74 की हम बात करें, 74 का मतलब सही आंसर होना चाहिए सी। नाउ क्लाइमैक्टिक का मतलब समझिएगा, क्लाइमैक्टिक क्लाइमेट या मौसम से संबंधित नहीं होता। क्लाइमैक्टिक मीन्स रिलेटेड टू क्लाइमैक्स। जैसे पिक्चर के क्लाइमैक्स होते हैं, क्लाइमैक्स मतलब जब पिक्चर खत्म होने को होता है, कंक्लूजन पे पहुंचता है, दैट इज क्लाइमैक्स। सो ए में कह रहा है द क्लाइमैक्टिक डिग्रेडेशन शैल लीड टू कैटेक्लिज्मिक वेदर चेंज। क्लाइमेट से तो रिलेटेड ही नहीं है, ये क्लाइमैक्स से रिलेटेड है, तो क्लाइमैक्टिक तो बोल ही नहीं सकते, क्लाइमेटिक होता तो हो सकता था। यहां पे भी द क्लाइमैक्टिक चेंजेस इन द एनवायरमेंट विल इंपैक्ट द एंटायर वर्ल्ड। क्लाइमैक्टिक चेंजेस, क्लाइमेटिक चेंजेस, क्लाइमैक्स से रिलेटेड नहीं है। द क्लाइमैक्टिक आउटकम्स ऑफ द रिस्ट्रेंट सस्टेनेबिलिटी आर पॉजिटिव। यहां पे कहीं पे भी एनवायरमेंट या क्लाइमेट की बात नहीं की जा रही है, दैट्स द रीजन सी इज द आंसर। डी कह रहा है द क्लाइमैक्टिक चेंजेस प्रिसेजिंग एनवायरमेंटल डिजास्टर प्रेडिक्टेड टू अनफोल्ड। अगेन ये भी गलत है, क्योंकि यहां पे भी क्लाइमेट से रिलेटेड बताया जा रहा है। सो इट इज क्लाइमैक्टिक विच इज रिलेटेड टू क्लाइमैक्स, एंड क्लाइमेटिक बोलोगे तो रिलेटेड टू क्लाइमेट। यहाँ पे क्लाइमेट से संबंधित कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, तो ए, बी और डी सारे क्लाइमेट से रिलेटेड हैं, इसलिए उसे एलिमिनेट कर दिया। सी इज द करेक्ट आंसर, नॉट ए, बी एंड डी। ओके, next affect. The correct answer for question number 75 should be D. Again affect एक verb के तरह यूज किया जाना चाहिए। The new diet did not seem to have any effect. Affect नहीं, यहाँ पे effect होता तो सही होता, तो eliminated. For the new scheme to take effect नहीं, take effect. Okay, तो यहाँ पे भी ये गलत है। In effect we are back, in effect नहीं, in effect. सो अगेन ये भी गलत है। यहाँ पे बस अफेक्ट जो है वो वर्ब के तरह यूज किया जा रहा है, बाकियों में नाउन के तरह यूज किया जा रहा है। इफेक्ट नाउन के तरह यूज नहीं करोगे, अफेक्ट को इफेक्ट को नाउन के तरह यूज करोगे। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 की हम बात करें, द करेक्ट आंसर इज सी। द डिस्क्रीट सीरीज हैड मेनी इंटरवीनिंग गैप्स। ऑब्वियसली आपने अगर मैथमेटिक्स ऑब्वियसली पढ़ा होगा सीरीज, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते थे। बाकी में डिस्क्रीट CREET होना चाहिए, दैट इज डिस्क्रीट नॉइस कैंसलिंग। सो CREET ये वाला आपका आंसर सही है, तो 76 का होना चाहिए सी। नेक्स्ट इट्स, इसका मतलब क्या होता है? इट अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है इट इज। इट्स नेचर इज ससेप्टिबल टू रैपिड चेंज, मतलब हो जाएगा इट इज नेचर। व्हाट इज इट अबाउट इट इज परफॉर्मेंस? नहीं, ए बी दोनों ही नहीं। It is imperative that you study hard. Absolutely, C is correct. What about it is value in the market? Again गलत। तो यहाँ पे it apostrophe s करके लिखोगे, इसका मतलब हो जाएगा it is। तो सभी में it is लगा के देखना, जो भी सेंटेंस it is से सही लगता है, obviously C लगता है। It is imperative that you study hard for success. C is the correct answer to this question. आगे बढ़ते हैं। amidst और amid, amongst और among में फर्क क्या है? इसको हमेशा वॉवल साउंड वाले वर्ड्स के पहले लिखा जाता है, वॉवल्स के पहले। अमिड्स देम कॉन्सोनेंट, अमिड्स्ट हिज कॉन्सोनेंट,
amidst all vowel, amidst you consonant, गलत. एक ही है जो वॉवल के पहले लिखा है और amidst all ऐसे करके लिखा है. और amidst और amongst में और भी फर्क है कि amidst हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए लिखा जाता है और amongst हमेशा लिविंग थिंग्स के लिए लिखा जाता है. ओके, amidst इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, amongst इज यूज्ड फॉर लिविंग थिंग्स. amongst और amidst वगैरह थोड़ा सा आउटडेटेड है गाइस, लेकिन ये सब वॉवल्स के पहले ये आते थे, कॉन्सोनेंट के पहले among या amid आता है, दैट्स द डिफरेंस. लेकिन अभी सभी के पहले आप amid या among ही लिखोगे, ये थोड़ा सा आउटडेटेड है. ओके, लेस की बात करें तो 79 का करेक्ट आंसर होना चाहिए सी. द करेक्ट आंसर इज सी फॉर क्वेश्चन नंबर 79. देयर इज लेस शुगर इन द टी देन व्हाट आई आस्क्ड फॉर. शुगर अनकाउंटेबल नाउन है, लेस इज करेक्ट. देयर आर लेस देन 14 पीपल. अगेन पीपल काउंटेबल है तो लेस नहीं फ्यूअर होना चाहिए था, इसलिए ए गलत. लेस स्टेट्स अगेन गलत. फ्यू स्टेट्स तो इसलिए ये भी गलत है. देर आर वेरी लेस डेज, देर आर वेरी फ्यू डेज, इसलिए भी गलत है. सो एक ही है जो अनकाउंटेबल है, आप लेस लगा सकते हो. सो सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ प्रैक्टिस एसई और प्रैक्टिस सीई, एडवाइस एसई और एडवाइस सीई, ये सब में फर्क मैंने बताया. प्रैक्टिस एसई के साथ लिखोगे तो वर्ब की तरह काम करेगा, सीई के साथ लिखोगे तो नाउन की तरह काम करेगा. So which is the correct answer? For question number 80, the correct answer is D. It is important to practice regularly to ensure good performance on match day. Practice यहाँ पे verb के तरह यूज किया गया है, बाकी में सारे वो noun के तरह यूज किया गया है. ओके, noun के तरह लिखोगे तो CE लिखना पड़ेगा यहाँ पे, CE. इसलिए A, B and C are wrong. D is correct because practice SE is a verb and it has been used as a verb only. नाउन के तरह यूज कर रहे हो तो सीई लिख सकते हो. द सेम गोज विथ एडवाइस, सीई एडवाइस एसई. एडवाइस सीई नाउन है, एडवाइस एसई वर्ब है, याद रखना. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस. कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस हम इसे कहते हैं, वी कॉल देम कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस. इट इज नॉट दैट आई डू नॉट टेक अ डिसीजन. It is not that I do not take a decision. I decide not to take a decision. The correct answer for question number 81 should be A. ऐसा नहीं है कि मैं डिसीजन नहीं लेता हूं, लेकिन मैं डिसाइड करता हूं कि मैं नहीं लूंगा. सो ए शुड बी द करेक्ट आंसर. ओके, बाकी कोई मैच नहीं करता. आई डू नॉट डिसाइड अ डिसीजन, यूसेज ही गलत है. आई हैड नॉट टेकन, गलत. आई डिसाइड आई वुड नॉट हैव टेकन, भी गलत है. ओके, इफ आई वर इन योर पोजिशन, कंडीशनल सेंटेंसेस. इफ आई वर इन योर पोजिशन, आई हैड बीन एक्सेप्टिंग, आई वुड नॉट एक्सेप्ट, I would not have been accepting, I should not. So correct answer is B. 82 का आंसर होना चाहिए B. If I were in your position, I would not accept this compensation. मैं तुम्हारे जगह पे होता तो मैं compensation accept नहीं करता. Question number 83. Having written many novels and short stories, she cannot be feeling about life. She is to feel life too big to understand. She should not have been being feeling for life. She feels life is too vast to understand. So yes, D is the correct answer for question number 83. D जिसने भी मार्क किया था सही थे, बाकी ग्रामेटिकली भी गलत है. There are many career options. You can choose any of them. Any means any one of them. बहुत सारे options हैं, आप कोई भी choose कर सकते हो. So A is absolutely right. That will complete the sentence. Meaning समझ के करोगे तो it really becomes easy for you to solve such questions. If you had prepared well, conditional sentence. If clause is in past perfect, तो आगे क्या लिखोगे? You would have been तो नहीं होगा, will have नहीं, must have नहीं, would have fared well. Yes, D is absolutely right for this one. Whoever marked D was the correct answer. Okay. Next, where there is a will, ये एक बहुत बड़ी famous कहावत है, जहाँ चाह वहाँ राह. So where there is a will, there is a way. Absolutely B is right. Where there is a will, there is a way is right. It is getting dark. Must I turn on the lights? Should I be turning? May I be turning? Or can I? It's getting dark. Can I turn on the lights? Yes. So I will go with D for this one. शाम हो रही है, क्या मैं बत्ती ऑन कर सकता हूँ? क्या मैं लाइट्स ऑन कर सकता हूँ? So can I turn on the lights? So D is appropriate one. So go with D for question number 87. Question number 88. Once I met a traveler. The correct answer should be A, who said he had been to an ancient place. So A is right. बाकी के आंसर्स ही गलत हैं, बाकी के ऑप्शंस मैच नहीं करते. Okay, man is the greatest truth of all.
There is nothing beyond him. So you go with B for question number 89. Man is the greatest truth of all. There is nothing beyond him. So B is the answer for this one. Next, if your life is circumscribed by habits alone, then you are merely an imitative machine. You are merely an imitative machine. So B is the answer for question number 90. तो कैसा जा रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस सेक्शन में कहाँ पे आपने गड़बड़ किया. कट ऑफ आपका कितना जा रहा है वो भी कमेंट करके बताइएगा. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज अबाउट एनी क्वेश्चन दैट इज श्योरली डिबेटेबल, कमेंट करके बताइएगा. वील एड्रेस दोस. Okay, before I move on, बता दूं guys, we are launching a live batch for the CDS 2023 paper. Aspirants who are preparing for CDS 2023, please, you can enroll yourselves into this batch starting on the 12th of September, goes up till 15th of February 2023. Okay, and the price is 7,500. You get a discounted price for 4,999. The book is included in this course. Okay, we'll get the book along with it. Okay, आगे बढ़ते हैं. Ordering of words in a sentence. Question number 91 का आंसर होना चाहिए A. QPSR. Rubidium is used in the filaments of photoelectric cells which convert light energy into electrical energy. QPSR is the one. Question number 92 का होना चाहिए D. RQSP. This is the final word of an educational philosopher who has left his mark on a world in which he urged so many to get involved. RQSP is correct for question number 92. Next, question number 93 का आना चाहिए C. RQSP is the one. Irony is a figure of speech where you say one thing while you mean another or the opposite. RQSP for question number 93. Whichever sequence makes sense उसी को आप select करोगे. Rearrangement of words कहते हैं. Pretty easy. 10 out of 10 आना चाहिए था इसमें. क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर होना चाहिए D. RQSP is the one. The discovery of petroleum in the Middle East has changed the lifestyle of the people across the world. RQSP is absolutely right. क्वेश्चन नंबर 95 का होना चाहिए A. QPSR. The camel uses fat as a source of energy, okay, during its long journey in the desert. QPSR for question number 95. Question number 96 का होना चाहिए आपका B. QPSR is the one. The beginning and the concluding lines must support the main part, okay, or the events described in the story. QPSR is the one for question number 96. 97 का होना चाहिए C, which is QPSR. Our beautiful riverine ecosystem is being systematically damaged by industrial pollution channeled into rivers. QPRS is the one. वेरी गुड. जज करिए कितने आंसर्स आपके सही हुए एंड कमेंट करके बताइएगा. क्वेश्चन नंबर 98, द करेक्ट आंसर शुड बी बी फॉर दिस वन. SPRQ इज द वन. द टेलीविजन स्क्रीन इज चैलेंजिंग द फिल्म इंडस्ट्री ड्यू टू its ready availability and nearness to the viewers. SPRQ is the one for question number 98. 99 में चलते हैं. द करेक्ट आंसर शुड बी A. QPSR is the one. Researchers say that they built an artificial intelligence system that, like humans, makes ethical judgments. QPSR is the one for question number 99. Question number 100 यहाँ पे होना चाहिए आपका B. RPSQ. It is not that he does not think, sorry, it is not that he is a fool. It is that he does not think others think intelligently. Okay, it is that he does not think, वो ये नहीं सोचता कि दूसरे intelligently सोचते हैं. तो RPSQ is the one. Question number 100. अब पैसेज की बात करते हैं. Obviously you must have read the passage. आप ऑलरेडी पैसेज पढ़ के आपने आंसर कर चुका होगा. तो मैं डायरेक्टली आंसर्स पे आ जाता हूँ जो कि पैसेज में क्लियरली मैंशन था. किसी भी आंसर में कोई दिक्कत है तो बताइएगा, फिर बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे. ज़रा सा मैं अपना वीडियो ऑफ कर लेता हूँ. या अभी तो आप पैसेज तो आपने ऑलरेडी पढ़ ही लिया होगा ना, तो पैसेज अभी पढ़ने की तो ज़रूरत है नहीं. क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर होना चाहिए A.
China's objective of signing a security pact with Solomon Islands is to contribute in ensuring security in the Pacific. Okay, question number 102. The pact symbolizes China's doctrine of, correct answer should be B, deployment of security forces wherever needed. So B is the correct answer for question number 102. 103 की बात करते हैं. Which one of the following is implied by Beijing would not seek to become a global hegemon? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से सी. बीजिंग इज नॉट एस्पायरिंग टू हैव कंट्रोल ओवर द वर्ल्ड. इसी का मीनिंग पूछा जा रहा है ना. बीजिंग वुड नॉट सीक टू बिकम अ ग्लोबल हेजेमॉन. इसका मतलब क्या हुआ? बीजिंग इज नॉट एस्पायरिंग. बीजिंग तो ये कह रहा है, वो ये नहीं सोच रहा है कि वो दे विल हैव कंट्रोल ओवर द वर्ल्ड. बोलता तो ऐसे है. सो बीजिंग वुड नॉट सीक टू बिकम ग्लोबल हेजेमॉन. बीजिंग is not aspiring to have control over the world. So C should be the answer for this one. 104 का आंसर होना चाहिए D. What does square with the idea imply in the passage? Square with the idea का मतलब होता है agreeing with multiple views. That is squaring with the idea. Square with the idea means agreeing to something. What does strategic foothold imply in the passage? Strategic foothold जो लिखा है उसका meaning होना चाहिए planned access. पैसेज के हिसाब से स्ट्रैटेजिक फुटहोल्ड मींस प्लान्ड एक्सेस. सो बी शुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन. अगला पैसेज था पैसेज नंबर 2. ऑब्वियसली आपने पढ़ लिया होगा. मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आता हूं. व्हाट इज इंटरनेशनल कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम हियर? इंटरनेशनल कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम हियर एक्चुअली इज द एक्सचेंज ऑफ कार्बन क्रेडिट्स बिटवीन नेशंस. इट्स क्लियरली मेंशन्ड इन द पैसेज. पढ़ लीजिएगा. इफ यू हैव एनी डाउट्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा. वी विल एक्सप्लेन दैट टू यू एज वेल. 107 की बात करें. व्हाट इज द थर्ड इश्यू बीइंग मेंशन्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शेयर ऑफ द रेवेन्यू? शेयर ऑफ द रेवेन्यू थर्ड इश्यू कौन सा मेंशन था? सो 107 का आंसर होना चाहिए ए. द रेवेन्यू मे नॉट बी शेयर्ड विद यूएन्स अडेप्टेशन फंड. सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर 107. 108 की बात कर रहे हैं. जो ये वाला लाइन था फॉरेस्ट टू एक्ट एज कार्बन सिंक मीन्स, इस पूरे लाइन का मीनिंग पूछा जा रहा है. सो 108 का आंसर होना चाहिए डी. फॉरेस्ट कैन इम्प्रूव द एनवायरमेंट. ओके, फॉरेस्ट टू एक्ट एज कार्बन सिंक मीन्स फॉरेस्ट कैन एक्चुअली इम्प्रूव द एनवायरमेंट बिकॉज दे absorb कार्बन डाइऑक्साइड. 109. व्हाट इज द कंसर्न अबाउट द इंटेग्रिटी ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम? करेक्ट आंसर होना चाहिए ए. डेवलप्ड कंट्रीज एंड कंपनीज वुड नॉट बी अधेरिंग टू क्रेडिट सिस्टम. सो ए इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. 109 का आंसर होना चाहिए ए. 110 का आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नियरर टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोटोकॉल इन द टेक्स्ट? ओके, प्रोटोकॉल का मीनिंग यहाँ पे होना चाहिए सी. फॉर्मल वेज ऑफ डूइंग समथिंग. ओके, पॉलिसीज, दोज आर प्रोटोकॉल. सो सी इज द करेक्ट आंसर. अगला पैसेज नंबर 3 की हम बात करते हैं. चलते हैं हम क्वेश्चंस. आरबीआई वाला जो पैसेज था आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 111. इसका आंसर होना चाहिए बी. What are the volatile components of inflation? Components such as fuel, food and fuel are volatile components. Clearly mentioned in the passage. 112 की बात करें. What are prices unlikely? Sorry, why are prices unlikely to abate in the short term? So इसका आंसर होना चाहिए A. Because of inflation in the pipeline. जिसने भी ये सिलेक्ट किया था सही थे for this question. Cross check कर लीजिएगा. In what context are the words pass through used in the passage? पास थ्रू को किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है? दैट सर्विसेज सेक्टर विल इंक्रीज प्राइसेस एट डिमांड एज डिमांड पिक्स अप. सो ए शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर 113. 114 की बात करें. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड कोटिडियन एज यूज्ड इन द पैसेज. पैसेज के हिसाब से कोटिडियन का मतलब हुआ डे टू डे. 114 का आंसर होगा डी. 115. choose the most appropriate option that describes the meaning of the term unanchoring as used in the passage. Unanchoring का एक्चुअली में मतलब होना चाहिए डी. अगेन, रन अवे इन्फ्लेशन दैट इज आउट ऑफ कंट्रोल, दैट इज अनएंकरिंग. सो डी इज राइट. अब कुछ सिनोनिम्स के क्वेश्चंस थे गाइज. आपने देखा होगा सिनोनिम बेस्ड क्वेश्चंस. आपको इनके सिनोनिम्स बताने थे. ही इज कंसिडर्ड टू बी द हार्बिंजर. हार्बिंजर का मतलब एक्चुअली में होता है एडवांस मैसेंजर. बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. 117. द विस्टा ऑफ द विलेजेस इज ब्यूटिफुल. विस्टा क्या है? विस्टा का मतलब होता है लैंडस्केप. सो ए शुड बी द करेक्ट आंसर. दैट शुड बी द सिनोनिम. हर एक्ट वॉज कंसिडर्ड एज मोस्ट लैमेंटेबल. लैमेंटेबल का मतलब यहाँ पे होगा डिप्लोरेबल. सो डी शुड बी द सिनोनिम फॉर दिस वन.
द लीडर्स एंड्योरेंस पेड एंड ही वन द इलेक्शंस. सो एंड्योरेंस का एक्चुअली में मतलब होना चाहिए पेशेंस. अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, पेशेंस इज राइट. वी आर प्लानिंग अ जॉन्ट फॉर अ वाइल ड्यूरिंग द विंटर. तो जॉन्ट का मतलब होता है एक्सपेडिशन, अ स्मॉल ट्रिप और अ जर्नी that is undertaken, that is a small jaunt. So these were the questions, analysis, detail में हमने सारी चीज़ें आपको आंसर्स बता दिया. If you have any doubts, queries, comment section में comment करके ज़रूर बताइएगा. We will discuss those questions. So उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा रहा होगा. मेरा हिसाब से कट ऑफ should be anywhere around 65 to 70 for the English section. ओके 9 बजे जुड़ना मत भूलिएगा. संदीप सर आपके आएंगे अपने चैनल पे लाइव सेशन लेके, आपके जनरल स्टडीज़ के एनालिसिस को लेके, इसी पेपर का. ओके सो मैं कोशिश करूँगा आपको बाकी सब्जेक्ट्स के भी आंसर्स कीज प्रोवाइड कर दूँ. ओके इसके अलावा बता दूँ इंग्लिश का बुक लॉन्च हो चुका है. यू कैन डाउनलोड द इंग्लिश फंडा ऐप टू बाय द बुक. And if you buy the book, you get a free subscription to the video course. That is the recorded course, not the live course. So recorded course is already there on the app. So English Funda app को download करिए, subscribe to the channel, this channel English Funda, and click on the bell icon for notifications. All the best. I'm sure you people will clear the paper with flying colors. Okay. So that was it. Comment करके बताइएगा कि कैसा रहा and कितना आप expect कर रहे हो. किसी question में कोई doubt होगा तो we'll surely discuss. There's a live batch coming up. On the 12th of September 2022, will go on till 15th of February 2023 for people who are preparing for CDS 2023 exam. English का बैच है, live बैच है. If you want to join, do join it. Basic से सारी चीज़ें होंगी. The cost of this is 7,500, but you get it at a discounted fee, which is 4,999. Okay, the batches will be taken by Vinod sir and me. Okay, so that was it in the session. और आपको ये भी बता दूं कि आपको लाइव कोर्स के साथ साथ आपको बुक्स भी मिलेगा. ओके सो दैट वाज इट इन दिस सेशन. मिलते हैं अगले सेशन में. गुड बाय, स्टे सेफ, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय.